Hello dear students, welcome back. Let's begin with the new question. The question says for 50 students of a class, the regression equation of marks in statistics x on the marks in accountancy y is 3y minus 5x plus 180 equals to 0. The mean marks in accountancy is 44 and the variance of marks in statistics is 9 by 16th of the variance of marks in accountancy. Find the mean marks in statistics and the correlation coefficient between marks in two subjects. Lots of information given in the question. Don't worry, we'll spread it one by one. So without wasting any time, let's begin with the solution. सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल कितने स्टूडेंट्स है क्लास में 50 मतलब देर आर 50 ऑब्जर्वेशंस राइट सो n is given as 50. Marks in statistics is represented with x, right? So x is marks in statistics and marks in accountancy is represented with y. So y is marks in accountancy. Now ये जो equation हमें दिया है, this is marks in statistics x on marks in accountancy y. मतलब ये वाली equation है x on y, right? ये कौन सी regression equation है? x on y, right? So the regression equation of x on y in the question is 3y minus 5x plus 180 equals to 0. अब क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो इक्वेशन है ये x on y है तो x on y को हम सबसे पहले क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे रीअरेंज कैसे करेंगे we'll keep x on one side and rest on the other side right x on y के लिए you have to keep x on one side and rest all on the other side. So rearranging this equation we get 5x equals to 3y plus 180. अब इसमें एक और छोटा सा काम हमें क्या करना है ये जो x का कोएफिशिएंट है दिस हैज टू बी 1 बट हमारे पास x का कोएफिशिएंट फिलहाल यहाँ पर है 5 तो in order to make this 5 as 1 we have to divide throughout by 5 so if we divide this becomes x this will become 3 upon 5y and plus 180 upon 5 तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये x on y के फॉर्म में आ गई है राइट तो x का तो कोएफिशिएंट हमने 1 कर दिया है अब जो भी y का कोएफिशिएंट है दैट इज योर बी एक्स वाई राइट ये जो y का कोएफिशिएंट है 3/5 दिस इज योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y दैट इज बी एक्स वाई इज 3/5 ऑल राइट तो ये जो हमको इक्वेशन दी हुई थी x ऑन y वाली उससे हमने क्या फाइंड कर लिया है बी एक्स वाई की वैल्यू नाउ along with this we are also given that the mean marks in accountancy is 44 right अब क्योंकि accountancy y है तो mean of accountancy meaning y bar right so y bar कितना दिया हुआ है 44 और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मतलब x बार फाइंड करना है राइट सो y बार इज गिवन एज 44 एंड वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x बार अब देखिए काफी इजी है x बार की वैल्यू फाइंड करना नॉर्मली हम x बार और y बार कैसे फाइंड करते हैं हमको अगर दो रिग्रेशन इक्वेशंस दी हुई है तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी यूजुअली गेट वैल्यूज ऑफ x बार एंड y बार बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है राइट तो एक इक्वेशन दिया है और साथ में वी आर गिवन विद y बार एंड वी नीड टू कैलकुलेट x बार तो इस केस में देखिए सिंस वी आर गिवन विद द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एज 3y minus 5x plus 180 equals to 0. So all regression equations are satisfied by their corresponding means. That is, जहां पे भी आपको regression equation में x और y दिखाई दे रहे हैं आप उन x और y को रिप्लेस कर सकते हो x बार एंड y बार से आई रिपीट ऑल regression equations are satisfied by their corresponding means. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे y की जगह पे y बार सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड x की जगह पे विल सब्स्टिट्यूट x बार तो रिवाइज्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी 3y बार माइनस 5x बार प्लस 180 इक्वल्स टू 0. Now in this equation y bar is already given in the question as 44 right so here you can replace y bar with 44 so it will be 3 into 44 minus 5x bar plus 180 equals to 0. Now simplifying this further we get 132 minus 5x bar plus 180 equals to 0. Simplifying further we get minus 5x bar plus 312 equals to 0. It gives 5x bar equals to 312 and finally the value of x bar will be 312 divided by 5 which is 62.4.
तो अगर y बार 44 है तो द वैल्यू ऑफ x बार विल बी 62.4। तो ये जो पहला अननोन हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, राइट। नाउ इसी के साथ हमको एक और चीज यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट। बट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पर देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें दिया है। व्हाट इज दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन? द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स is 9/16 times the variance of marks in accountancy। अब देखिए जो मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स है वो x है, तो x का जो वेरिएंस है वो 9/16 टाइम्स क्या है, वेरिएंस ऑफ y, राइट। सो हियर वी आर गिवन विथ variance of x, right, variance of x equals to 9/16 times variance of y, 9/16 times variance of y। I hope this is clear, right? अब नेक्स्ट स्टेप में यू कैन सेंड दिस वेरिएंस ऑफ y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बिकम sigma x square upon sigma y square equals to 9/6। Now taking square root on both the sides we get sigma x upon sigma y as 3/4, right। अब देखिए सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई तो हमें 3/4 मिल गया, बट हमको इवेंचुअली क्या फाइंड करना है, को रिलेशन को इफिशियंट, राइट। तो आई होप एवरीबडी नोज द रिलेशन बिटवीन बी एक्स वाई एंड को रिलेशन को इफिशियंट। याद आ रहा है कुछ? नहीं तो मैं याद दिला देता हूं, द वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई इज आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और ऐसा ही एक रिलेशन है बी वाई एक्स के साथ भी। तो अगर ये एक्स वाई की जगह बी वाई एक्स होता तो ये जो रेशियो इट विल बिकम सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो यहां पर भी इस रिलेशन को यूज करके वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ आर। तो बी एक्स वाई तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 3/5। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3/5, आर इज अननोन and sigma x upon sigma y is also known to us as 3/4। Now rearranging this entire equation we get r equals to 3 multiplied by 4 divided by 5 multiplied by 3, and simplifying this further we finally get value of r as 0.8। I hope this is clear to everyone. See you in the next video.